غلط فہمی ہوگی کہ 18ویں ترمیم کے بعد سے پہلے صوبائی حکومت کا کوئی رول نہیں تھا صحت کے نظام پہ. 18ویں ترمیم سے پہلے بھی صوبائی حکومت کا رول تھا ہیلتھ کیئر کے نظام میں. اور جب وفاق سندھ کے ہاسپٹلس چھیننا چاہتے ہیں, چاہے وہ NICVD ہو یا JPMC ہو, تو تب 18ویں ترمیم ان کو نظر نہیں آتا. وزیر اعظم کا یہ بہت غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹس ہے. یہ پہلی دفعہ ہوگا جہاں وفاق اور وزیر اعظم صوبے سے لا تعلقی کے اعلان کر رہے ہیں گلوبل پینڈیمک کے دوران, جہاں پوری دنیا میں ایک آل آف گورنمنٹ اپروچ. وزیر اعظم سے لے کے نچلے سطح تک مل کے مقابلے کر رہے ہیں. پاکستان کا وزیر اعظم کا یہ کہنا کہ یہ ہمارا ذمہ داری نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں عائشہ احتشام. آغاز کریں گے آج کی ایک بڑی ہی اہم خبر سے. تبدیلی سرکار میں تبدیلیاں تو ہوتی ہی رہتی ہیں, لیکن آج ہوئی ہے ایک بڑی اہم تبدیلی. جس وقت پاکستان میدان جنگ بنا ہوا ہے, کرونا وائرس کے خلاف پوری قوم لڑ رہی ہے, ایسے میں وزیر اعظم نے فردوس عاشق اعوان کو عہدے سے ہٹا کر ان کی جگہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کو اس عہدے کے لیے منتخب کیا ہے, جبکہ وفاقی وزیر اطلاعات کے طور پر سینٹ میں قائد ایوان سینیٹر شبلی فراز کو چنا گیا ہے. وزیر اطلاعات کا عہدہ اس وقت سے خالی تھا جب سے فواد چودھری کو اس عہدے سے ہٹایا گیا تھا. بڑے پاپولر, آپ کو یاد ہوگا, انفارمیشن منسٹر فواد چودھری صاحب ہوا کرتے تھے. خیر وہ جس بھی عہدے پر جائیں پاپولر ہی رہتے ہیں. وزارت اطلاعات میں اس وقت اہم ترین تبدیلیوں کو انتہائی خاص قرار دیا جا رہا ہے, کیونکہ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ جو ہیں وہ اس وقت سی پیک اتھارٹی جو گزشتہ سال ہی بنائی گئی تھی اس کے چیئرمین بھی ہیں. اور اس کے علاوہ جنرل عاصم سلیم باجوہ نے 2012 سے 2016 تک بطور DGISPR بھی وہ کام کر چکے ہیں. اور اسی طرح وزیر اعظم عمران خان کے ترجمان وہی ہوں گے, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, یعنی عمران خان صاحب کے ترجمان وہی ہوں گے جو ماضی میں پاک فوج کے ترجمان تھے. شبلی فراز اور جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کی تعیناتی پر سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بھی رد عمل دیا ہے, جو پچھلی بار سے تھوڑا مختلف ہے. فواد چودھری نے آج شام اس تعیناتی کے اعلان کے فوری بعد سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں دونوں کی تقرری پر کافی خوشی کا اظہار کیا. انہوں نے لکھا ہے کہ ان دونوں پر مشتمل ٹیم بہترین کام کرے گی. لیکن ماضی میں اگر آپ کو یاد ہو تو فواد چودھری صاحب سے جب یہ وزارت واپس لے کر ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو معاون خصوصی اطلاعات بنایا گیا تھا اور ان کو یہ دی گیا تھا عہدہ, تو اس وقت انہوں نے کافی تنقید کی تھی اور کہا انہوں نے یہ تھا کہ منتخب لوگوں کو غیر منتخب لوگوں سے تبدیل کرنا مناسب نہیں ہے, ٹھیک نہیں ہے. لیکن آج فردوس عاشق اعوان صاحبہ کی جگہ جو تعیناتی ہوئی ہے وہ نہ تو تحریک انصاف سے تعلق رکھتی ہے, بلکہ اس کا تعلق تو کسی بھی سیاسی جماعت سے کبھی بھی نہیں رہا. لیکن آج پھر بھی کابینہ کے رکن فواد چودھری اس تعیناتی پر کافی خوش ہیں. فردوس عاشق اعوان اور فواد چودھری کبھی ایک ہی جماعت پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے تھے. آج سے 8 سال پہلے بھی فردوس عاشق اعوان کو ایسی ہی ایک صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا جب انہوں نے پہلے اپنی وزارت سے استعفیٰ دیا اور پھر بعد میں فواد چودھری کی طرح پیپلز پارٹی بھی چھوڑ دی تھی. کافی ایموشنل مومنٹس تھے وہ, دیکھیے گا. آپ کی کمٹمنٹ, پارٹی کی کمٹمنٹ ایک وے فارورڈ ہے. آپ کی ممبر اس اہل ہوں کہ میں کنٹینیو کروں, تو میں آپ کی اجازت سے یہاں اپنا ریزگنیشن سبمٹ کروانا چاہ رہی ہوں. میری ہر طرح کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. ایز اے پارٹی لیڈر ایز منسٹر نہیں آن کرتے, پارٹی آن نہیں کرتی, مجھے کوئی سیٹ نہیں چاہیے جس میں مجھے پارٹی کا یا آپ کا کانفیڈنس نہ ملے. تھینک یو. اور اب بات کریں گے جی آج کی دوسری بڑی خبر کے حوالے سے, اور ایک بڑی بحث اس وقت ملک میں چھڑ چکی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ملک میں اب 18ویں ترمیم کا آخر مستقبل کیا ہوگا. یہ سوال اس وقت اٹھے ہیں جب حزب اختلاف کی جماعت پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو کی طرف سے وفاق پر کافی سنگین الزامات جو ہیں وہ عائد کیے گئے ہیں. بلاول بھٹو نے تو صاف صاف کہا کہ وفاق 18ویں ترمیم کی غلط تشریح کر کے اپنی ذمہ داری سے دستبردار نہیں ہو سکتا ہے. انہوں نے وزیر اعظم عمران خان پر بھی تنقید کی اور کہا کہ وہ صوبوں سے اظہار لا تعلقی کر رہے ہیں. بلاول بھٹو نے طنزیہ انداز میں کہا کہ 18ویں ترمیم صوبوں کو اختیار دیتی ہے لیکن وفاق کو راہ فرار نہیں دیتی. بلاول بھٹو نے سوال اٹھایا کہ جب وفاق سندھ کے اسپتال
छीनना चाहता है तो उस वक्त 18वीं तरमीम नजर नहीं आती। 18वीं तरमीम के बाद वफाक का कोई किरदार नहीं, तो फिर मुल्क में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जैसा इदारा जो है वो क्यों है? बिलावल भुट्टो जरदारी के मुताबिक वफाक में क़यादत का बदतरीन फुकदान है इस वक्त, जिसके बायस कोरोना वायरस से निमटने के लिए कौमी सतह की एक पॉलिसी जो है उसमें ताखीर हो रही है। इस वक्त चारों सूबों में सिंध वो सूबा है जहां तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं है, और हमने बार बार ये देखा है कि वफाक और सिंध आमने सामने ही हमें नजर आते हैं। पहले पीपल्स पार्टी पीटीआई की हुकूमत पर इल्जाम आयद करती आई है कि यह हुकूमत बनाई ही इसलिए गई है क्योंकि 18वीं तरमीम को खत्म किया जाए, सूबों की खुद मुख्तारी पर किसी सूरत जो है वो आंच नहीं आने दी जाएगी। इस आज़म का इरादा भी जो है वो पीपल्स पार्टी की जानिब से बार बार किया जाता है, बार बार इस बात का ऐलान जो है वो करते रहे। बिलावल भुट्टो हुकूमत गिराने की तहरीक में मरसू मरसू सिंध ना डेसू के नारे भी लगाते रहे हैं, और आज उन्होंने ये इल्जाम आयद किया कि वफाक अब 18वीं तरमीम की गलत तशरीह कर रहा है। बात सूबे को खुद मुख्तार बनाने से शुरू हुई और अब इख्तियार से राह फरार तक आन पहुंची है। वफाक और सिंध में इस वक्त तलखी के जो तमाम तलखी है और जो सूरत हाल है, और इस सूरत हाल में फिर इस तरह की तलखी जब एक चैलेंज का आपको सामना है और मिलकर उसको मुकाबला करने की जरूरत है, इसी तमाम सूरत हाल के ऊपर बिल्कुल हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ वफाकी हुकूमत की पार्टी रहनुमा कौमी असम्बली की रुकन कमल शोज़ब साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया कमल साहिबा आप प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ऑब्वियसली आज की एक बड़ी डेवलपमेंट जो है डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान की जगह जो तैनातियां हुई हैं 2, मैं उनके बारे में बात करना चाहूंगी। मुझे कमल साहिबा बताइएगा कि इज दिस द राइट टाइम, या फिर इतनी खराब थी कारकर्दगी फिरदौस आशिक अमान साहिबा की कि नागुज़ीर हो गया आपके लिए ये फैसला करना ही पड़ा आप लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच आयशा। देखिए, फैसला है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का और आईनी हक है ये उनका। जब वो प्लेसमेंट कर सकते हैं तो वो हटा भी सकते हैं, और वो बेहतर समझते हैं कि उनकी टीम में किस वक्त किसको खेलना है और किसको आगे आना है। तो मैं समझती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया है। शिबली फराज साहब को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बड़े काबिल और बड़े धीमे मिजाज के आदमी है, लेकिन अपनी बात बड़े तरीके से करते हैं, कन्विंस करते हैं आर्गुमेंट। और जनरल आसिम बाजवा साहब को भी हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो मॉडर्न ISPR का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं वो आसिम बाजवा साहब हैं, और अभी जाहिर है वो रिटायर्ड हैं, और उनके जो स्किल्स हैं, जो उनकी तालीम है, जो काबिलियत है, उससे किसी को इनकार नहीं है। तो मैं समझती हूँ बहुत अच्छा एक डिसीजन लिया वज़ीर आज़म ने, और मैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। जो आ गए उनकी बात भी करेंगे, लेकिन जो ऑब्वियसली अपनी खिदमात सर अंजाम दे के जा चुकी, बहुत ही जो इल्जामात की जो नौयत है वो इस तरह की है कि मुलाजिम रख लिए थे बगैर पूछे, माली रख लिया, ये तो इस तरह के इल्जामात जो हैं वो डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान साहिबा के ऊपर लग रहे हैं। तो मुझे बताएगा कि कितनी सदाकत है ये जो इस तरह की खबरें अब उड़ रही हैं या उड़ाई जा रही हैं कि फिरदौस आशिक अमान साहिबा को तब्दील करने के पीछे ये वजूहात हैं? देखिए, वज़ीर आज़म ने जब उनको रखा था तो उस वक्त उन्होंने किसी को कोई लॉजिक या जस्टिफिकेशन तो नहीं दी थी ना। तो जब वज़ीर आज़म समझते हैं जो जिस टास्क उनको असाइन की गई थी, और स्पेशल असिस्टेंस फॉर टू प्राइम मिनिस्टर थी, तो ये वज़ीर आज़म का इस्तेकाक है कि वो बगैर किसी एलिगेशन के या बगैर इस किस्म की खबरें जो उड़ रही हैं इनको जस्टिफाई करके और वो हटाएं। ये उनका इस्तेकाक है जिसको उन्होंने इस्तेमाल किया। मैं ऐसी ना खबरों की किसी सदाकत को यहाँ बैठ के वेरीफाई करूंगी, ना मैं उनके जात पे किरदार पे कोई कीचड़ उछालना समझती हूँ। जितना अरसा उन्होंने काम किया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ये जब स्पेशल असिस्टेंट का ओहदा ही ऐसा है कि वज़ीर आज़म का अपना इस्तेकाक है, अगर वो समझते थे कि उनसे बेहतर काम करने वाले लाए जा सकते हैं, कि जो जिनका वो काम वो बना के लाए हैं, तो हम उनको वेलकम करते हैं। मैं इस पे ये नहीं कहूंगी कि डॉक्टर साहिबा के जिम्मे कोई करप्शन है, ये तो बाद में अगर कोई ऐसी बात हुई तो जरूर तहकीकात भी होंगी और वो सामने भी आ जाएंगी, लेकिन मैं ऐसे किसी भी चीज को इस वक्त वेरीफाई नहीं कर रही क्योंकि मेरे नॉलेज में नहीं है। ठीक है, आपके नॉलेज में है ही। शहला रज़ा साहिबा अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर चुकी है। शहला साहिबा, अब जो वज़ीर इत्तलात होते हैं या कोई भी वजीर होता है मुल्क का, वो तो पूरे मुल्क का वजीर होता है, तो आज हमारे जो मुशीर इत्तलात थे उनको तब्दील कर दिया गया और उनकी जगह वज़ीर इत्तलात लगाए गए हैं, और उसके साथ साथ फिर एक मुआवने ख़ुसूसी भी आए हैं। मैं आपकी राय जानना चाहूंगी इस पर। ठीक है कि ये PTI का अंतिम मामला है, लेकिन इस बात पे मैं समझती हूँ कि आज PTI को खुशी होगी कि उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को ये मौका मिला कि वो वजीर बने, वरना अभी तक जो वज़ीरा की तादाद है उसमें इलेक्टेड लोग बहुत कम थे, 49 में शायद 18 है। तो ये वो मैं ये समझती हूँ कि ये आज PTI की एक वर्कर्स की इंटरनली एक जीत हो गई है
صحیح. کہ ان کو جو ہے ان کا الیکٹڈ اور ان کا جو ممبر تھا پی ٹی آئی کا اس کو ایک پہچان ملی. ادروائز اس وقت کابینہ بھی جو ہے وہ ایسے ہی لوگوں پر زیادہ مشتمل ہے کیونکہ مشیران ہیں. تو ٹھیک ہے, ورکر خوش ہے تو ہم بھی خوش ہیں, ہم تو ورکر لوگ. ٹھیک ہے. اچھا کمل صاحب, آپ دوسرے مدعے کی طرف آتے ہیں. obviously آج کی جو دوسری بڑی ڈیولپمنٹ تھی وہ یہ 18ویں ترمیم NFC ایوارڈ کے اوپر نظر ثانی کا ایک فیصلہ تھا جو کہا جا رہا ہے کہ حکومت کر چکی ہے. یہ کس قسم کی نظر ثانی ہے؟ کیا آپ 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں, یا پھر جیسا کہ اسد عمر صاحب نے کہا کہ آپ مزید اختیارات دینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ صوبوں تک تو پہنچ گئے ہیں لیکن اور نیچے جانے چاہیے, تو آپ اس کے اندر جو ہے وہ کچھ ایکسٹینشنز کرنا چاہ رہے ہیں. کس قسم کی تبدیلی ہے, ذرا بتائیے گا. میں دیکھیں اسد عمر صاحب کی بات کو ہی آگے بڑھاؤں گی. 18ویں ترمیم جب بنائی گئی تھی یا کی گئی تھی, ایک ترمیم ہے جو کانسٹیٹیوشنل ترمیم ہے, اس کو ختم نہیں ہم کر سکتے, نہ ہم کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے. ایک پروسیس ہے پورا جس کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے, وہ اس کو ریووک کر سکتی ہے, لیکن ہمارا کوئی ارادہ نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ صوبوں کو اختیارات ملیں اور اسٹرینتھن ہو, لیکن سکم ہر جگہ موجود ہے. 18ویں 19ویں اور 20ویں تینوں ترامیم میں کچھ ایسے فلاز ہیں جن کو بہتر کیا جا سکتا ہے, کیونکہ جب انسان بیٹھ کے سوچ بچار کرتے ہیں اور اس ٹائم کے موروثی حالات کے مطابق آئین سازی ہوتی ہے, تو جب آپ نے ظاہر ترمیم کی ہے تو اس کا ریزن یہی ہے نا کہ اس میں کچھ ان کو کمی محسوس ہوئی تو انہوں نے 18ویں ترمیم کی. اب اگر 18ویں ترمیم کے اندر کوئی پروسیجرل ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ابھی کوارڈینیشن میں ایشو آ رہا ہے, یا NFC ایوارڈ جب دیا جاتا ہے, میری بات سمجھیں. کمل صاحب کیا ایشوز ہے؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ حالیہ 2 مہینوں میں آپ کو زیادہ وہ ایشوز کھل کر سامنے آیا, آپ نے تجربہ کیا ہے کہ یہاں پہ کچھ خرابی ہے, تو کیا ہوا پچھلے 2 مہینوں میں جس کی وجہ سے آپ کو لگا کہ نہیں یہاں پر جو ہے کچھ ہونا چاہیے, نظر ثانی ہونی چاہیے؟ جب جی عائشہ, میں اسی طرف آ رہی ہوں. NCOC کی میٹنگز ہوتی ہیں, اس میں بھی سارے بیٹھتے ہیں. ایجوکیشن منسٹر صاحب آج شفقت محمود صاحب بھی چینل پہ بیٹھے تھے, انہوں نے بھی یہ بات کی کہ جب ایک یونیفائڈ سلیبس کی بات ہو تو کیونکہ ایجوکیشن ہیلتھ دونوں ڈیوالوڈ سبجیکٹس ہیں, پھر اس میں رسپانسبلٹی کا اور جو ایک نیشنل نیریٹو کی بات پیپلز پارٹی بہت زیادہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اس میں اگر 18th امینڈمنٹ کو دیکھا جائے تو اس وقت 18th امینڈمنٹ کو آنکھیں بند کر کے لوگوں کو بائی پاس کرا کے یہ ادراک کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ساری ذمہ داری وفاق کی ہے, حالانکہ یہ پاور ساری 18th امینڈمنٹ کے بعد جو ہے وہ صوبوں کو منتقل ہو چکی ہیں. تو ایک نیشنل جو فاؤنڈیشن ہوتی ہے, یا ایک جو آپ کی وفاق کے پاس ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے کہ ایک آپ نے نیریٹو اگر کریٹ کرنا ہے تو اس کی اتھارٹی بھی ہونی چاہیے. فار انسٹنس ایجوکیشن ہوگی, اگر ہیلتھ میں آپ کو اس وقت کمانڈ کی ضرورت ہے تو تمام صوبے جو ہیں وہ اپنی اس وقت اختیارات رکھتے ہیں. اسلام آباد سے خالی ہیلتھ اگر مینج کرنی ہے وہ وفاق کے اختیارات ہیں, تو یہ چیزیں. دوسرا NFC ایوارڈ کے بارے میں بات کروں, مفتاح اسماعیل صاحب نے اپنی جو لاسٹ ٹینیور تھا اس میں ایک دفعہ بیان دیا تھا کہ جب آپ سارے NFC ایوارڈ نپٹانے کے بعد جو پیسے بچتے ہیں وفاق کے پاس وہ -600 بلین سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو اگر آپ بجٹ میں اور پھر اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ اگر صوبے پھر بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وفاق ہی سارا خرچہ کرے, اس میں ڈیفنس کا بجٹ بھی آ جاتا ہے, اس میں آپ کے بڑی کنسٹرکشن بھی آ جاتی ہے, تو تھوڑا سا میرے خیال میں کوارڈینیشن بہتر کرنے کے لیے, اور جو سکم ہے ظاہر ہے آئینی ترمیم میں یہ ضروری ہوگا کہ تمام پارٹی ساتھ بیٹھتی ہیں اور آپس میں افہام و تفہیم کے ساتھ ڈسکشن کے بعد چیزوں کو ٹھیک کرتی ہیں. بات ہو رہی ہے 18th امینڈمنٹ کو کوئی ختم نہیں کرنے جا رہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, پوائنٹ آپ کا آ گیا. میں یہ پوائنٹ لے کر شیلا صاحبہ کے پاس ضرور جاؤں گی, لیکن سابق اٹارنی جنرل اور ہمارے قانون عرفان قادر صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں. آپ کی جو باتیں اس میں 2-3 چیزیں آتی ہیں, وہ بھی میں بالکل ان کا بھی ذکر کروں گی کہ بلاول صاحب نے کہا ہے کہ راہ فرار آپ کو نہیں دے دیتا, اور ایک نیشنل پالیسی کے فقدان کی بھی بات کی. میں واپس آتی ہوں. عرفان قادر صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. عرفان قادر صاحب, یہ جو سوچ رہی ہے حکومت کے 18ویں ترمیم NFC ایوارڈ نظر ثانی کی جائے گی, کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس فیصلے کو, اور خاص طور پر اگر موجودہ ماحول کو, موجودہ حالات کو دیکھا جائے تو یہ کس قسم کا فیصلہ ہو سکتا ہے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اس فیصلے پر عمل درآمد کرا سکتی ہے یا کر سکتی ہے؟ دیکھیں, ابھی تک یہ بات کلیئر نہیں ہے کہ یہ نظر ثانی جو ہے 18ویں ترمیم میں کیا کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ 18ویں ترمیم میں جو ایک بہت بڑا ڈفرنس جو پیدا ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ اس کے تحت جو ہماری کنکرنٹ لیجسلیٹو لسٹ تھی اس کو ختم کر دیا تھا, اور جو ریزیڈیو تھا وہ اسٹیٹس کو دے دیا گیا تھا, یعنی صوبوں کو دے دیا گیا تھا, کیونکہ اس سے پہلے ہماری جو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہے اور کنکرنٹ لیجسلیٹو لسٹ ہے وہ اتنی زیادہ ایگزاسٹو تھی کہ اس کے بعد جو ریزیڈیو صوبوں کے پاس تھا وہ تقریباً صوبوں کو بہت کمزور کر دیتا تھا, اور یہی خیال تھا کہ صوبوں کو صوبائی خود مختاری جو ہے بڑھائی جائے
क्योंकि कायदे आज़म ने जिस पाकिस्तान का ख्वाब देखा था वो यही था कि सूबे जो हैं वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, और जब 73 कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली बना तो सूबों की जो इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में थी उससे भी ज़्यादा कम कर दी गई। ठीक है। और इसीलिए फिर ये पीपल्स पार्टी के दौर में ही ये आईनी तरमीम जो है, ये 18वीं तरमीम, और इसमें एक बहुत बड़ा जो चेंज किया गया वो ये किया गया कि इससे पहले 8वीं तरमीम के जरिए सदर को एक इख्तियार दे दिया गया था कि वो असेंबली को तोड़ सकते हैं। वो इख्तियार जो है वो सदर से 18वीं तरमीम के जरिए उन्होंने ले लिया। और ये भी कंसेप्चुअली ये बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं आपको इस पे एस्पेक्ट्स बताता हूँ कि ये जो सदर का इख्तियार होता है, आप हैरान होंगी सुन के कि पाकिस्तान में अगर 58(2)B था तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 85(2)B था, जिसमें कि हिंदुस्तान के सदर जो हैं ही कैन, वहाँ लिखा था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में डिसॉल्व द हाउस ऑफ द पीपल फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये कंसेप्चुअली ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिस तरह के बरतानिया में भी, वहाँ पे भी कॉन्सेप्ट सोल्यूशन का था बाय द क्वीन इन पार्लियामेंट और किंग इन पार्लियामेंट, लेकिन वो कॉन्सेप्ट जो था हमारे 73 कॉन्स्टिट्यूशन में मिसिंग था। लेकिन जनरल ज़ियाउल हक के वक्त जब ये आया तो जो हमारे सियासी जो लोग थे उनका ये ख्याल था कि ये चूंकि डिक्टेटर के दौर में किया गया, लिहाजा उन्होंने क्रिटिसाइज किया इस चीज को, लेकिन कंसेप्चुअली ये कोई गलत बात नहीं थी। तो ये एक अनएंडिंग बहस है, कंसेप्चुअली गलत बात नहीं है, आप ये कह रहे हैं। इरफान कायर साहब मुझे ये बताइएगा क्विकली जरा, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास टाइम कम है, मुझे शैला साहबा के पास भी जाना है। क्विकली मुझे ये बता दीजिएगा कि आपको फॉर इंस्टेंस अगर ये मान लिया जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी की अंडरस्टैंडिंग इसके ऊपर जो है वो काफी इस तरह की अंडरस्टैंडिंग है, मैं बिल्कुल शैला साहबा से पूछूंगी कि आखिर अंडरस्टैंडिंग है क्या जो इतनी तनकीद हो रही है। तो अगर ये वाली अंडरस्टैंडिंग है कि शायद सुबह से इख्तियार लेने की कोई सोच है हुकूमत के दिमाग में, तो इस तरह की अगर कोई चीज करने जाते हैं तो आप उनके पास उनको वो मेजोरिटी तो हासिल नहीं है ना जिससे वो ये कर सकते हैं, वो इस पोजीशन में नहीं है अभी। यस और नो? देखिए, 18वीं तरमीम को खत्म करने की तो अभी खुल के किसी ने बात नहीं की। अभी मैं उनको सुन रहा था, ये जो कंवल साहिबा हैं पीटीआई की, तो ये भी यही कह रही थी कि हम कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाना चाहते हैं। तो स्पेसिफिक्स का जिक्र अभी इन्होंने भी नहीं किया। तो इसलिए जब तक ये चीज की वजाहत सामने ना आ जाए कि ये क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तब तक ये जो कंसेंसस है तमाम हमारी सियासी पार्टियों का, वो मुश्किल होगा। बिकॉज इसके लिए ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर कोई कानूनी नुक्ता नजर देना हो तो एक क्लैरिटी बहुत जरूरी होती है। जब तक क्लियरली सामने नहीं आएगा कि क्या करना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर उस तरह से ओपिनियन देना भी मुश्किल होगा। बहुत शुक्रिया इरफान कायर साहब हमारे साथ मौजूद है। शैला साहब, आप लोगों की तरफ से काफी ये रिएक्शन इसका हमने देखा है कि सामने आया। बिलावल साहब जो है उन्होंने भी काफी तनकीद की है। क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी? आपको क्या लगता है कि हुकूमत क्या करने जा रही है? क्या 18वीं तरमीम खत्म करने जा रही है जो आप लोग इतना ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं इसके ऊपर? असल में हुकूमत का एक तरीका है, इसका कोई भी जो स्पोक पर्सन है वो कोई भी किसी मामले पे एक पेज पे नहीं होता। कंवल साहिबा ने खासी बेहतर बात करने की कोशिश की, लेकिन अली मोहम्मद साहब ने कहा कि लोगों को मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आइन ज्यादा अहम है या 18वीं तरमीम। उन्हें पता ही नहीं कि 18वीं तरमीम आइन का हिस्सा है। उन्हें शायद ये भी नहीं मालूम कि कितना वक्त लगा, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर इसमें बैठे, कितना इस पे सोच विचार हुआ, और उन्हें ये भी नहीं मालूम कि शायद दिसंबर 2013 से रिवॉल्यूशन होना था, जिसको मैं बड़ी माजरत के साथ कहूंगी कि नवाज शरीफ साहब इससे इंसाफ नहीं कर सके। और मैं ये समझती हूँ कि जितने भी डिक्टेटर माइंडेड लोग होंगे वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि सूबे जो हैं वो इस तरह से खुद मुख्तार और मुतहर्रिक हो के वफाक के साथ उनकी यूनिटी रहे। अब बात कोऑर्डिनेशन बढ़ाने की अगर है तो जो हालात हैं, ये इस वक्त हम जिन हालात का शिकार हैं, इससे बुरे हालात 100 साल पहले थे जो हम में से किसी ने नहीं देखे, हमारी नस्ल में, हमारे वालिदैन की नस्ल ने भी, तो उनके वालिदैन ने देखे होंगे। लेकिन एक मुसीबत के वक्त में भी वजीर आजम कोऑर्डिनेट नहीं कर सके। एक लॉकडाउन जो है उस पे वो अभी तक कंफ्यूज है। अगर किसी सूबे ने पहले कर लिया, उसकी वजह से WHO ने तारीफ कर दी, इसमें खिसियाने की क्या बात है? और तो आपको लगता है कि सारी चीजें जो हो रही हैं वो उस वजह से हो रही हैं? शैला साहब मुझे ये बताएगा कि असद उमर साहब ने जो बात की उन्हीं लाइंस पे की जिन पे जो है कमल साहिबा बात कर रही हैं। आपने कहा कि कमल साहिबा ने काफी मुनासिब लाइंस पे बात की। उन्होंने ये बात की कि 18वीं तरमीम सही है। एक मिनट सवाल ले लीजिए। सवाल, 18वीं तरमीम सही है, सही सिमत की तरफ कदम है, लेकिन इख्तियारात सूबाई हुकूमतों को तो मिल गए लेकिन नीचे तक नहीं आए, यानी मकामी हुकूमतों तक नहीं गए। तो अगर वो ये चीज करना चाह रहे हैं, थोड़ी और इख्तियारात देना चाह रहे हैं, तो उसमें कोई कबाहत है क्या?
सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक लाइव डॉक्यूमेंट है और इसमें हम वक्त के साथ अमेंडमेंट और डिलीट जो भी करना है हम कर सकते हैं बहरहाल, लेकिन उसके लिए इंसान जो है जो कि पॉलिटिशियन अपने आप हैं उनको ये तो अगर वो एक दूसरे से बात ही नहीं करना चाहते, अगर वो एक दूसरे से बातचीत ही नहीं कर सकते तो आईनी तरमीम के लिए तो बहुत ही पेशेंस से बैठ के अपनी बात बतानी होती है। रोजाना के लेवल पे इजलास होते हैं, बहुत सारे डिसेंटिंग नोट्स आते हैं, फिर उनको सुना जाता है, फिर उनसे अपनी राय अगर बदलनी है तो वो भी बदली जाती है, अपनी राय देनी है तो वो किया जाता है। आप अपने तौर पे डिसाइड कर लें और कहें कि हम ये करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता भाई। ठीक है, यही सवाल लेकर कंवल साहिबा की तरफ मुझे बिल्कुल ठीक है कंवल साहिबा, ये आप लोगों को इदराक है कि आप कुछ भी, क्योंकि अभी अंडरस्टैंडिंग उस तरह से मिल ही नहीं रही, क्लैरिटी नजर ही नहीं आ रही कि एक्चुअली हुकूमत क्या करना चाह रही है। नजरसानी ऑब्वियसली इसके पीछे कुछ भी हो सकता है, आपके आधे लोग कुछ और कह रहे हैं, आधे लोग कुछ और कह रहे हैं, तो मुझे ये बताएगा कि आप लोगों को इदराक है कि वो जो कुछ भी आप करने जा रहे हैं, नजरसानी करने जा रही हैं, उसके लिए आपको कितनी अक्सरियत चाहिए, कितनी पावर चाहिए और किस तरीके से वो तमाम चीजें होंगी, कितनी फार्म तफहीम करनी पड़ेगी, ये है इदराक आपको? आयशा, मैंने तो अभी पहली स्टेटमेंट में ये बात की थी कि जब भी कोई आईनी तरमीम होती है तो उसमें 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत है और एक प्रॉपर प्रोसेस है या प्रोसीजर है जिसको अडॉप्ट करना है। इस वक्त तो जो हालात हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त पैनिक मोड में क्यों चली गई है। ये तो एक ला हासिल सी बहस है जिसमें ये इंडल्ज कर गए हैं और इनसिक्योरिटी की मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों इतनी 18th अमेंडमेंट पे अगर कोई एक सब्जेक्ट है इस पे अगर बात की जा रही है तो प्रोसेस तो सारा असेंबली में होगा ना, वो अभी असेंबली तो खुली भी नहीं है और वहां पे 2/3 मेजॉरिटी के लिए कंसेंसस डेवलप करना जरूरी है। तो ये जो तनकीद है ये अननेसेसरी तनकीद है। इस वक्त बात सारी ये है कि एक शजर ममनुआ नहीं है 18वीं तरमीम, जैसे इन्होंने डिस्कशन करके इसको लेकर आए थे 18वीं तरमीम, अगर इसमें कोई बेहतरी आ सकती है तो इस पे डिस्कशन करना तो एक सबका डेमोक्रेटिक राइट है। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत पॉजिटिव बात पे इसको ऑब्वियसली इसको एंड करते हैं। कंवल साहिबा ने कहा कि जब भी होगा, जो भी होगा कंसेंसस के साथ होगा, बैठकर बातचीत करने से होगा। और लेकिन एक पॉइंट ये भी ऑब्वियसली है, कह रही है कि बहुत पैनिक कर रहे हैं और इस टाइम पर कर रहे हैं, तो एक पॉइंट ये भी है कि आखिर इस पॉइंट पर इस इशू को छेड़ना जरूरी क्यों था हुकूमत के लिए कि 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड पर नजरसानी कर ली जाए जब कोरोना का एक महाज हमारे सामने खुला हुआ है। शैला रजा साहिबा हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, साथ रहिए। वो गवर्नमेंट ने शुरू तो कर रखा है लेकिन उस तरीके से अभी वो इतने बड़े लेवल पर नहीं है कि तमाम लोग जो हैं वो अकोमोडेट हो सके। एक और बड़ा इशू जो ऑब्वियसली पिछले कुछ दिनों से मीडिया में हाईलाइट हो रहा है और जिसके बारे में जिक्र होता रहा है कि कुछ डेड बॉडीज भी हैं जो कि स्पेन बार्सिलोना में इस वक्त फंसी हुई हैं और बहुत सारे लोग, उनके घर वाले अजीजो खारिब यहाँ पर उनके मुंतजर हैं और उनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो नॉन कोरोना डेथ्स हैं। अगर कोरोना के हवाले से डेथ्स हो तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग ऑब्वियसली होती है कि कोरोना डेथ्स हैं या नॉन कोरोना डेथ्स हैं, और कोरोना डेथ्स होती हैं उनके साथ बहुत सारे कुछ हिफाजती इंतजाम आपने करने होते हैं, जुड़े होते हैं, और फिर एक ऑप्शन ये भी होता है कि शायद उधर ही जो है वो तकसीम कर दी जाए। लेकिन इनमें बहुत सी जो डेड बॉडीज हैं वो कोरोना डेथ्स भी हैं। हमारे साथ इमरान अली चौधरी, काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान बार्सिलोना स्पेन, इस वक्त हमारे साथ बार्सिलोना से मौजूद है। बहुत शुक्रिया इमरान अली साहब। इमरान अली साहब, बिल्कुल ये जो इश्यूज तमाम मैंने बयान किए हैं, मुझे जरा तफसील से बताइएगा कि एक्चुअली क्या प्रॉब्लम इस वक्त जो है वहां पर जो पाकिस्तानी हैं उनको क्या फेस करने पड़ रहे हैं। हम ये तो कहते हैं कि यहाँ पर जो है हमारी मदद की जाए, लेकिन अभी एक ऐसा वक्त है जब हमारे जो दियारे गैर में पाकिस्तानी वो मुश्किल में हैं और उनके साथ जो है वो इश्यूज चल रहे हैं। जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी जी। सबसे बड़ा मसला इस वक्त यहाँ ये पड़ा है कि पाकिस्तानी ज़्यादातर अनएम्प्लॉयड हो गए हैं क्योंकि वो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में नहीं थे। पूरा स्पेन रिसेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है। तो कैटलोनिया और बार्सिलोना के इर्द गिर्द वी फील के 20,000 के करीब ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनकी जॉब्स चली गई हैं और कई डेली वेजेस पे थे, तो उनके फूड की प्रॉब्लम्स भी। ये तो वो हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। फिर मार्च से लेके अब तक की तकरीबन 16 डेथ्स हुई हैं, जिसमें से 12 नॉन कोरोना डेथ्स हैं। अच्छा। और 4, जिस तरह आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, कोरोना डेथ्स हैं। ठीक है। तो पिछले हफ्ते से पहले बहुत प्रॉब्लम थी क्योंकि स्पेन इज क्लोज डाउन जी। स्पेन का पेपर वर्क इज क्लोज डाउन। स्पेन इज अंडर डेथ स्पेल इस वक्त, तो बॉडीज नहीं जा रही थी।
बट फिर हमने बड़ी मुश्किल से कार्गो का रूट, एक्सपेंसिव रूट है, उसके जरिए इस हफ्ते 4 बॉडीज गई हैं, पिछले हफ्ते 1 गई थी, और जो आखिरी 2 PIA की फ्लाइट्स थी उन पे 2 गई थी. सो वी वर एबल टू सेंड 8 नॉन कोरोना बॉडीज. तो इमरान साहब ये कितना टाइम हो गया ये बॉडीज जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं? कितने अरसे से ऑब्वियसली एक इंतजार चल रहा है, जो यहाँ भी जो अजीजो अकारिब हैं उनको इंतजार होगा, कितने अरसे से आप कोशिश करें? क्योंकि हमारे इल्म में तो ये बात आई है कि वहां पर जब तमाम चीजें लॉकडाउन थी तो आप लोगों का जो ऑफिस था उसको लॉकडाउन नहीं किया गया, वो खुला था आवाम के लिए, वहां पर जो लोग मुश्किल में थे उनके लिए. जी, वो इस तरह होता है कि हमारे ऑफिस में, नॉट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट माय ऑफिस, हम तकरीबन 15 से 20 मिनट में NOC दे देते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, लेकिन स्पेनिश गवर्नमेंट से मिलने में बहुत डिफिकल्टी होती है. तो ये मार्च की बॉडीज हैं जी, जिनकी मैं आपको तफसील बता रहा हूँ. ये 1 मार्च ऑनवर्ड से अभी तक हैं. तो आप इस तरह समझ लें कि 16 टोटल डेथ्स हैं, जिसमें से 8 नॉन कोरोना चली गई हैं, और अब हमारे पास 4 नॉन कोरोना और 4 कोरोना बॉडीज आर स्टिल लाइंग विद अस. ठीक है. अच्छा इमरान साहब, ये कौन से इलाकों से ताल्लुक है इन लोगों का जिनकी बॉडीज आपके पास हैं? ये पूरे स्पेन की जी मैं आप बात कर रहा हूँ, बार्सिलोना का कॉन्सुलेट. ठीक है, वो तो ठीक है. पाकिस्तान में किन इलाकों से ताल्लुक है या कहाँ पर आपको जो बॉडीज है वो भिजवानी है? जी मेनली ये गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और इस बेल्ट की हैं सारी. अच्छा जी, ठीक है. तो अभी भी वो जो 4 नॉन कोरोना बॉडीज हैं वो भी हैं और 4 कोरोना बॉडीज हैं आपके पास, तो उनको भेजने के लिए कोई सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है? जी, जो 4 कोरोना बॉडीज हैं जी, उसमें से 3 चली जाएंगी इंशाल्लाह इस थर्सडे को, एंड दे विल रीच ऑन द वीकेंड. फिर हमारे पास 4 कोरोना बॉडीज हैं, उसके लिए हम स्पेनिश गवर्नमेंट के साथ, हमारी गवर्नमेंट ने उनको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन स्पेनिश गवर्नमेंट उनकी एम्बावरमेंट की भी इजाजत नहीं दे रही. ठीक है जी, बहुत शुक्रिया. इमरान अली चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान, बार्सिलोना, स्पेन से. कोशिशें बिल्कुल वो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं और जो वो कोशिशें कर रहे हैं उनको सराहा भी जो है वो जाना चाहिए. एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया कि वहां पर जब पूरा स्पेन लॉकडाउन में था तो उनका ऑफिस जो है वो बंद नहीं था, वो खुला था अपने लोगों की मदद करने के लिए. इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है. आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी. ख्याल रखिए अपना. अल्लाह हाफिज. और इनकी सरकार नफसियाती तौर पर कोरोना के खिलाफ जंग हार चुके हैं. जो एक्सपो सेंटर जैसा नाअहल मंसूबा है, इनको शर्म नहीं आती कि जिस अस्पताल में 2 ड्रिप्स लगाने की जगह नहीं है उसको ये कह रहे हैं हमने वुहान जैसा शहर बना दिया है. डॉक्टर यास्मीन राशिद, मैं आपको बता दूं अवाम को, नफसियाती तौर पर कबूल कर चुकी हैं कि मई के महीने में यहाँ पे हजारों डेथ होनी ही होनी है. लिहाजा पंजाब हुकूमत से ये मुतालबा करना कि आप लॉकडाउन कर दें, ये बेवकूफ़ी है. वेलकम बैक जी. पंजाब में वजारत सेहत पर जो है वो कड़ी तनकीद ना सिर्फ डॉक्टर्स की जानिब से हो रही है, बल्कि जैसे जैसे ये फैलाव का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, खुद हुकूमत के अपने लोग भी वजारत सेहत की जो कारकर्दगी उस पर सवाल उठाते रहते हैं. हाल ही में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की मिसाल ले लीजिए. डॉक्टर यास्मीन राशिद की मुल्तान में कारकर्दगी पर कड़ी तनकीद की उन्होंने और अपनी ही पंजाब हुकूमत पर बरस पड़े थे. मैं खास तौर पर तवज्जो दिलाना चाहूँगा मिनिस्टर हेल्थ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को कि मेहरबानी फरमाएं कि मुल्तान की जो डॉक्टर्स की दिक्कत है इस पे फिल फॉर तवज्जो दें, और मैं उससे गुजारिश करूँगा कि अगर मेहरबानी फरमा के मुल्तान का एक चक्कर भी लगा लें तो इससे इन डॉक्टर्स की हौसला अफजाई हो जाएगी. मैं जो अगला NCC का इजलास होगा, मैं इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म की तवज्जो भी और मैं वज़ीर आला से भी गुफ्तगू करूँगा. मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि मिनिस्टर हेल्थ को मुल्तान आने की वो उनसे दरख्वास्त करें और उन्हें कहें कि उन्हें मुल्तान आना चाहिए. जो टेस्टिंग लैब है जो बनी है उनमें भी मैं समझता हूँ कि मुल्तान में एक स्टेट ऑफ आर्ट टेस्टिंग लैब की ज़रूरत है. मेरे इल्म में आया है कि 5 लैब्स बनी हैं, उसमें मुल्तान में वो लैब नहीं है. क्यों नहीं है इसके बारे में भी मैं समझता हूं कि हेल्थ मिनिस्ट्री को बिल्कुल जवाब देना चाहिए.
अब ये तो थे जी वज़ीर ख़ारजा, इसलिए डॉक्टर साहिबा को जाना ही पड़ा मुल्तान और वहां जाकर चीजों को जो है वो देखना पड़ा। लेकिन अब एक और कंट्रोवर्सी जो है वो डॉक्टर साहिबा के इर्द गिर्द उनका घेराव करती हुई नजर आ रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब के अहदेदार डॉक्टर सलमान हसीब ने और ये कहा कि पंजाब कोरोना के लिहाज से खतरनाक तरीन बन चुका है और वज़ीर सेहत पंजाब के हकाइक छुपा रही है। डॉक्टर्स ने यह भी इल्जाम आयद किया कि पंजाब में हुकूमत लॉकडाउन की सलाहियत ही नहीं रखती। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ये तस्लीम कर चुकी हैं कि पंजाब में मई में हलाकतें होंगी और साथ ही डॉक्टर्स की तरफ से यह दावा किया गया कि जुलाई के महीने में हुकूमत सूबे को तबाह बर्बाद कर देगी। इट्स अ वेरी सीरियस एलिगेशन। डॉक्टर्स ही नहीं, सियासी हरीफ और हलीफ सभी डॉक्टर यास्मीन की कारकर्दगी पर कई बार सवाल उठा चुके हैं, चाहे वो अस्पतालों की प्राइवेटाइजेशन का मामला हो या फिर मियां नवाज शरीफ के बैरून मुल्क रवानगी से मुतालिक अस्पताल की रिपोर्ट्स हो, मामला PKLI का हो या फिर मामला वकला की जानिब से पिम अस्पताल पर हमले का हो। डॉक्टर यास्मीन राशिद को हमेशा ही सवालात का सामना रहा है, लेकिन आज इतने संगीन इल्जामात आखिर डॉक्टर्स की जानिब से ही क्यों लगाए गए, इसी बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ग्रैंड हेल्थ अलायंस पंजाब के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर सलमान हसीब साहब, प्रेसिडेंट भी हैं YDA पंजाब यानी यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। लेकिन ये जो एलिगेशंस आप लगा रहे हैं, आपको अंदाजा है, अदराक है कि कितनी सीरियस नौयत के हैं कि जुलाई के महीने में जो ये हुकूमत है वो सूबे को तबाह बर्बाद कर देगी? क्या होने जा रहा है? बिल्कुल, हमने इल्ज़ामात बिल्कुल नहीं लगाए, ये वो हक़ाइक़ हैं जो हमने आपके सामने रखे हैं। और मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि हमने ये पहली दफ़ा नहीं, जब दिसंबर में WHO ने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम मरासला लिखा, हमने तब भी इनको जगाने की कोशिश की। दूसरा मरासला जनवरी में आया, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तीसरा मरासला जो है मार्च के एंड में आया, हमने तब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और अब सूरत हाल ये देख लें कि 3 मंथ्स में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और खसूस बिलखसूस महकमा सेहत पंजाब सोता रहा। इनके मुतअद्दिद डिपार्टमेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, किसी ने भी कोई भी एक्टिवली काम नहीं किया। इनकी एपिडेमियोलॉजी देख लें, इनका जो ग्राउंड लेवल का वर्क देख लें, इनका जो है इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम देख लें, कहीं पे भी गवर्नमेंट फ्रंट फुट पे नजर नहीं आए। एक काम किया इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक्सपो सेंटर में एक होटल कायम करके उसको हॉस्पिटल का नाम देके खुद को तुरम खान समझ रहे हैं और आसमान पे थूकने के मुतरादिफ ये है कि उसको वुहान सिटी के मुकाबले में अस्पताल करार दिया जा रहा है। और वो सदर पाकिस्तान बेचारे हैं, उनको भी बेवकूफ बनाने के लिए वहां पे ला के दिखा रहे हैं जी हमने हॉस्पिटल कायम कर दिया है। सूरत हाल ये है कि वहां पे 2 ड्रिप्स लगाने के मरीज को सहूलत मौजूद नहीं है, वहां रिससिटेशन करने का कोई प्रोग्राम नहीं है। सबसे बढ़कर ये नहीं तो डॉक्टर साहब, ये जो एक और एलिगेशन आप लोगों ने लगाया कि जानबूझकर जो है वो छुपाया जा रहा है, ये तो क्रिमिनल एक्ट है। मुझे ये बताएगा कि आखिर क्यों जानबूझकर वो छुपाया? इंतहाई जिम्मेदारी के साथ मैं नहीं, पंजाब की तमाम ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग मैडम की जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है, इनका इस बात पे असूली इत्तेफाक है कि हुकूमत पंजाब खसूस बिलखसूस महकमा सेहत टेस्ट्स की रिपोर्ट्स को छुपा रहे हैं। खसूस बिलखसूस जो डॉक्टर, नर्सिस और पैरामेडिक्स की जो रिपोर्ट्स हैं वो छुपाई जा रही हैं। नंबर 1 ये है कि उनके टेस्ट परफॉर्म नहीं किए जा रहे। एक पर्टिकुलर डे पे जब एक मखसूस तादाद में टेस्ट हो जाते हैं तो डॉक्टर, नर्सिस और पैरामेडिक्स को नेक्स्ट डे पे ले लिया जाता है कि कहीं जो इन्होंने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स नहीं दिए, जो इन्होंने हिफाजती इक़दाम नहीं किए, उसका पोल खुल के अवाम के सामने ना आ जाए। और मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं, इस वक्त कोरोना ना सिर्फ अस्पताल के अमले में बल्कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन में बुरी तरह फैल चुका है। हुकूमत ने सबसे पहले जो है अवेयरनेस प्रोग्राम में इंतहाई नालायकी की, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी डॉक्टर यास्मीन राशिद पे आयद होती है। दूसरी तरफ मैं वाज़ेह कर दूं आपको कि मई के महीने में जब WHO कहता था हमें समझ नहीं आती थी, अब हम खुद समझ रहे हैं, देख रहे हैं। मई के महीने में डॉक्टर साहब की ये ऑब्वियसली काफी सीरियस नौयत के इल्जाम है, तो मुझे क्लैरिफिकेशन अपने व्यूअर्स के लिए देनी थी कि आज सारा दिन डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को जो है वो हमने अपने प्लेटफॉर्म पे अपना मौक़िफ़ देने के लिए, क्योंकि एक तरफ इतने सीरियस एलिगेशंस थे तो जरूरी था कि उनका मौक़िफ़ भी आए, तो हम पूरा दिन ये कोशिश करते हैं कि डॉक्टर साहिबा जो हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म पर आकर जो है वो इसका अगर दिफा करना चाहती हैं या अपने दिफा में कुछ कहना चाहती हैं तो वो जरूर आकर कहें, लेकिन वो जो है वो नहीं, उनसे रब्ता हो सका। और अभी भी उनको कॉल कर रहे हैं, अभी भी हमारा प्लेटफॉर्म ऑब्वियसली आपके लिए हाजिर है। एक तरफ अगर इल्जामात लग रहे हैं तो उसके डिफेंस में भी कोई चीज तो आनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएगा कि एक रिसर्च हमारे सामने आई कल, उसके हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम से मीडिया पर जिक्र भी होता रहा कि हमने जब फैक्ट्स एंड फिगर्स निकाले
डालें तो हमने देखा कि जो तीसरा महीना शुरू होता है ना, वो हर जगह पे बड़ा डेडली रहा है। चाहे आप इटली को देख लें, चाहे आप स्पेन को देख लें, चाहे आप बरतानिया में देख लें, चाहे आप अमेरिका में देख लें, तो तीसरा महीना जो है वो काफ़ी खतरनाक होता है। तो अपेरेंटली अगर हम देखें तो 26 अप्रैल से हमारा तीसरा महीना शुरू हो चुका है। मुझे ये बताइएगा कि क्या एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अभी जिस तरह कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के नाम से भी मंसूब किया जाता रहा है कि वो ये कह रही हैं, वो ये एक्सेप्ट कर चुकी हैं कि मई में हलाकतें होंगी। क्या कितना बड़ा ये नंबर हो सकता है, और ये स्पाइक जिसको हम बार बार कहते हैं, एक आम आदमी के लिए हमें समझाइएगा कि स्पाइक कितनी ऊपर जा सकती है और इसमें कितना खतरा है। खुदा ना खास्ता देखें, सूरत हाल इंतहाई मकदूश होती दिखाई दे रही है। अगर आप गुज़श्ता 3 से 4 दिन में देखें तो जो ग्राफ जितनी तेज़ी से राइज आया है इससे पहले नहीं था। एवरी पासिंग डे पे नंबर ऑफ द केसेस जो हमें नज़र आ रहे हैं वो पिछले प्रीवियस डेज से ज़्यादा हैं। एवरी पासिंग डे पे नंबर ऑफ द डेथ्स आर इंक्रीजिंग। टुडे आज की मैं आपको सूरत हाल बता दूं कि हस्पताल फुल हो गए। हमारे बहुत सारे मरीज जिनको हमने कोरोना के सस्पेक्टेड पेशेंट्स थे, हमने म्यो में भेजा, वहाँ पे जगह नहीं थी, जिनाह हॉस्पिटल में भेजा, वहाँ पे जगह नहीं थी, सर्विसेज हॉस्पिटल में भेजा, वहाँ पे जगह नहीं थी। तो इनके जो सहूलियात हैं या इनके इंतजामात नाकाफी होते दिखाई दे रहे हैं। ये मैं फिर अगेन ऑन टीवी ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। वो तो खान साहब ने कहा था कि अगर 25,000 तक पहुंचते हैं तो हमारे पास सब तैयारी है, 50 तक पहुंचते हैं तो वी आर नॉट इक्विप्ड। ये आज के दिन की सूरत हाल है कि म्यो हॉस्पिटल इज सेइंग कि हमारे पास जगह नहीं है। आज के दिन की बात है। अगर आप कहें तो मैं उस मरीज से बात करा देता हूँ जो 3 हॉस्पिटल्स को घूम के बाद में सर्विसेज में आए हैं, वहां से फिर शायद उनको एक्सपो सेंटर शिफ्ट किया गया है। आज की सूरत हाल ये है कि 3 जगह से एक मरीज घूमे हैं और वो पूरे के पूरे लाहौर में कोरोना के फैलाव का बाइस बने हैं। ही वॉज नॉट कोई रिच आदमी नहीं थे, वो रिक्शे के ऊपर घूमते रहे हैं। तो लाजमी तौर पे अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होगी। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने होश के नाखुन ना लिए तो मई का महीना हमारे लिए वर्स्ट होगा। और पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है पंजाब की सबसे खराब है, और पंजाब की जो इंतजामिया है दूसरे सूबों की निस्बत ज्यादा नाअहल साबित हो रही है। दूसरे सूबों की निस्बत ये बिल्कुल देखें नफसियाती तौर पर ये जंग हार चुके हैं। अच्छा। डॉक्टर यास्मीन राशिद प्रॉबली एक्सपेक्ट कर चुकी हैं कि वो ये मान चुकी हैं कि उनके पास इसका सोल्यूशन नहीं है। अब वो सिर्फ एक काम कर रही हैं कि स्टैटिस्टिक्स को छुपाया जाए, मीडिया को दूर रखा जाए, इमरान खान को ऑल इज वेल की रिपोर्ट दी जाए। दिस इज ऑल शी इज डूइंग। अब मैं आपको बता दूं एक्सप्रेस सेंटर में लोगों को चलिए ये बता दीजिए मुझे डॉक्टर साहब, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो एलिगेशंस हैं, ऑब्वियसली किसी तरीके से कोई आपके पास कोई फिगर है जिससे आप प्रूव कर सके कि छुपाई जा रही है, क्योंकि जो एक ऑफिशियल फिगर है वो 5,500 के करीब है। आप मुझे बताइए लोकली कितने केसेस जो हैं वो इस वक्त होंगे, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि छुपा रहे हैं केसेस। देखिए मैं आपको सबसे पहले ये बात बता दूं कि सर्विसेज अस्पताल में एक बैच है, एक लेडी डॉक्टर का बैच था, उसमें से एक का टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। और हम ये समझते हैं कि अगर वो बाकी बैच फेलोज के साथ रही हैं तो उनका सारे का सारा बैच एट रिस्क है, उसके अभी तक टेस्ट नहीं किए गए। म्यो हॉस्पिटल में 2 डॉक्टर्स पॉजिटिव आए, उनके बैच के टेस्ट नहीं किए गए। वो WHO इज सेइंग अगेन एंड अगेन गो बिहाइंड द वायरस, पीछे जाएं वायरस को, उसको पकड़ें। यहाँ इनका इंतजाम जो है नजर आता दिखाई नहीं दे रहा। ये वायरस के आगे भाग रहे हैं। ये जो है इंतजामात कम होने के बाइस टोटल डिफेंसिव मोड में नजर आ रहे हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सलमान हसीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। ऑब्वियसली WHO की उन्होंने बात की तो उन्होंने टेस्टिंग के हवाले से बात की, और वो एक बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक है हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ जो केसेस ऑब्वियसली बढ़ तो रहे हैं लेकिन उस तरीके से हमें पता नहीं चल रहा है। हो सकता है, और ये डॉक्टर्स की जानिब से कहा भी गया कि जितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं, ये बताए जा रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा जो है वो केसेस हो सकते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हम टेस्टिंग उस लेवल पर नहीं कर पा रहे। ऑब्वियसली वी आर नॉट इक्विप्ड, हमारे पास टेस्टिंग किट्स नहीं है, वो हम नहीं कर पा रहे। इसकी वजह से भी शायद जो नंबर है वो यहाँ पर हमें कम दिखाई दे रहा है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर मुझे लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो हमने आज स्पेन में बात करनी है, क्योंकि वहाँ पर जो दयारे गैर में पाकिस्तानी है उनका एक बहुत बड़ा मसला है कि वहाँ पर जो डेड बॉडीज हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और उनको पाकिस्तान जो है वो आने नहीं दिया जा रहा। कोशिशें भरपूर ऑब्वियसली हो रही हैं, लेकिन वो क्या मामला है, किस तरीके से जो है हमारे लोगों की वहाँ पर जो मौजूद है उनकी मदद हो सकती है, यहाँ पर जो उनके रिश्तेदार अजीज़ व क़ारिब हैं जो मुंतज़िर हैं अपने प्यारों की, उन डेड बॉडीज की जो वहाँ पर फंसी हुई हैं, तो उसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगले सेगमेंट में इसी हवाले से बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, साथ रहिए।